Amen.
طور پہ دیکھنا چاہتا ہے. شریعت آپ کو جسم کے طور پہ دیکھتی ہے مگر یسوع آپ کو روح کے طور پہ دیکھتا ہے. جسم ہمیشہ گناہ کی وجہ سے دنیا میں رہ جائے گا مگر ہمیشہ میرے اور آپ کے خدا کے پاس ایک چیز جائے گی, میری اور آپ کی روح ہے. کیا میں اور آپ اپنی روح کی حفاظت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا میں اور آپ اپنی روح کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ میرے اور آپ میں وہ روح بستا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے. میرے اور آپ کے اندر وہ قدرت مینیفیسٹ کرتی ہے جس کے پاس قدرت ہے, اور وہ قدرت کوئی عام قدرت نہیں, وہ یسوع مسیح ناصری کی پیوری اختیار ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر مینیفیسٹ کرتا ہے. کیا میں اور آپ اس قدرت کی حفاظت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ کیا میں اور آپ اس روح کی حفاظت کر رہے ہیں نہیں کر رہے جو دنیا کی ہر روح سے زوراور ہے, جو دنیا کی ہر طاقت سے زوراور ہے, جو دنیا کی ہر اختیار سے زیادہ اختیار رکھتا ہے, جس کے پاس ہر چیز سے اوپر اختیار ہے. کیونکہ جو دنیا میں بستا ہے وہ میرے اور آپ میں جو بستا ہے اس سے بہت چھوٹا ہے. کیوں میں اور آپ پھر بھی مایوسی میں جیتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ پھر بھی ناامیدی میں جیتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ پھر بھی ناممکنات کا سامنا کرتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ پھر بھی ناامیدی میں بسنا چاہتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک جگہ تک روک کے رکھتے ہیں؟ کیوں میں اور آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا, نہیں ہم نہیں کر پائیں گے, نہیں ہم نہیں کر سکتے, نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جو مسیح مجھ میں اور آپ میں بستا ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہ تھی, نہ ہے, نہ کبھی ہوگی. تو یسوع میرے اندر اور آپ کے اندر بستا ہے, اس یسوع کے پاس اختیار تھا, ہے اور اب تک رہے گا. اس یسوع کے پاس اختیار تھا, ہے اور اب تک رہے گا. وہ زندگی کا بانی تھا, زندگی کا بانی ہے اور زندگی کا بانی رہے گا. آج ہم رومیو کے خط میں چلیں گے جو پالوس رسول نے لکھا ہے. پالوس رسول کی مارفت لکھا گیا رومیو کا خط جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول نے خط لکھا اور اس کا ٹائٹل جو لیٹسٹ بائبل ہے اس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا آتا ہے, روح القدس کے وسیلے سے زندگی. رومیو کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی نمبر آیت سے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, جو یسوع کے اندر ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, مگر ہم پھر بھی سزا میں جینا چاہتے ہیں, سزا میں جیتے ہیں اور سزا کی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں. پالوس رسول صاف صاف رومیو کی کلیسیا کو لکھ کے بول رہا ہے بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, مگر میں اور آپ اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر دوبارہ سزا کا حکم لے کے آتے ہیں. آپ اور میں بہت دفعہ خدا کے سامنے پھر وہی کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں تھے. ہم اسی طرح دوبارہ ہارون کی طرح دوبارہ وہ بت بنواتے ہیں, وہ بچڑے بنواتے ہیں, وہ بچڑے بنا دیتے ہیں جو کہ خدا کو ناپسند ہے, جبکہ ہم جانتے نہیں یا جاننا نہیں چاہتے کہ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو جب لکھ رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا اب سب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. سزا کا حکم مطلب ہے ان پہ موت کا حکم نہیں ہے, ان پہ ابلیس کا حکم نہیں ہے, ان پہ لوسیفر کا حکم نہیں ہے, ان پہ تاریکی کا حکم نہیں ہے, ان پہ اندھیرے کا حکم نہیں ہے, ان پہ ابلیس کی لعنتوں کا جو کہ دنیا میں بستے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا. کیونکہ اب ان میں میرے روح کا حکم بستا ہے, روح کے پھل بستے ہیں, روح کی نعمتیں بستی ہیں, روح ان کے اندر بستا ہے. جس روح نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اب وہ روح میں بستا ہے. اس لیے موت ان کو نہیں چھو سکتی, حالات ان کو نہیں گرا سکتے, تکلیفات ان کو نہیں روک سکتی, یا مشکلات ان کو میری خدمت سے نہیں روک سکتے. کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا. زندگی کی روح کی شریعت, 2 قسم کی شریعت بلکہ 3 قسم کی شریعت یہاں پہ پالوس بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں روح کی شریعت, اس کا مطلب روح کی جو شریعت ہے, روح کی شریعت یہ ہے کہ آپ گناہ گار نہیں رہے.
क्योंकि जब रूह आप में आता है, वो जब आता है जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात हिंदा मान लेते हैं, क्योंकि बगैर रूह के कोई यीशु को खुदा का बेटा नहीं कह सकता। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी बाइबल को जानते हो, मगर जब तक आप यीशु नाम पे ईमान नहीं लेके आते, जब तक आप रूह की शरीयत से बाहर होते हैं। और रूह की शरीयत क्या है? रूह की शरीयत ये है कि जब वो रूह जो यीशु में था, वो रूह जो यीशु में मैनिफेस्ट करता था, वो रूह जो पानी की सदा में चलता था, जब वो रूह आपके अंदर आता है तो फिर आप रूह की शरीयत के अंदर आ जाते हैं। और वो रूह आपको किस शरीयत से दूर करता है? पहली चीज यहां पे लिखता है, मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। कि बजाय जब आप में रूह की शरीयत आती है तो वो रूह की शरीयत आपको गुनाह से और मौत की शरीयत से आजाद कर देती है। क्या आप मौत की शरीयत में रहना चाहते हैं? क्या आप गुनाह की शरीयत में रहना चाहते हैं? क्या आप लानत की शरीयत में रहना चाहते हैं? क्योंकि एक शरीयत है जो रूह की शरीयत है, और वो रूह की शरीयत वो है जो खुदा की तरफ से है, और वो वही है जो ये कहती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए लानती बना, कि वो आपके लिए और मेरे लिए और मेरे आने वाली नस्लों के लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए मुर्दा हुआ, ताकि मुर्दा ना रहे बल्कि मुर्दों में से जी उठ के आपको और मुझे जिंदगी की शरीयत दे सके, जिंदगी का रूह दे सके, और जो उसके अंदर मैनिफेस्ट करती थी वो मुझे और आपको दे सके। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े करोगे। क्यों? क्योंकि वो रूह अब मुझे और आपको दे दिया गया है। जिस रूह से यीशु लाजर को जिंदा किया, वो रूह पौलुस के पास था, इसलिए पौलुस ने मुर्दा को जिंदा किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो ही इख्तियार था। जिस तरह यीशु यहां से चलता था, जब पतरस चलने लग गया तो जो साया पतरस के यहाँ पे गिरता था, जब लोग वहां पे रुमाल रखते थे, उस रुमाल के वसीले लोग शिफा पाते थे। क्यों? क्योंकि रूह की शरीयत के अंदर आ चुका था। मगर आज भी लोग मसीह जिंदगी के अंदर होते हुए भी मसीह के साथ वफादार नहीं है, और लोग मौत और गुनाह की शरीयत के अंदर रहना चाहते हैं। मगर जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को खत लिख रहा था, उसने बोला कि उसने मौत की और गुनाह की शरीयत से हमें आजाद किया है। मेरे आप पे मौत की शरीयत नहीं नाफिज होती, मेरे और आपके ऊपर गुनाह की शरीयत लागू नहीं होती, क्योंकि शरीयत जो कि मूसा की शरीयत कहलाती है वो आपको गुनाह से वाकिफ कराती है, गुनाह से आजाद नहीं कराती। मैं और आप बजाय उस शरीयत से भी आजाद हो जाते हैं, क्योंकि वो शरीयत तो सिर्फ गुनाह के मुतालिक बताती थी, गुनाह से आजाद नहीं करा सकती थी। कोई भी शरीयत के वसीले रास्ता नहीं कह सकता था, जो कि मूसा की वसीले मुझ का रास्ता लगाई थी। मगर जब रूह की शरीयत आई तो जो पहली चीज पर मुझे आपको सिखाता है, उसने गुनाह की और मौत की और गुनाह की शरीयत दोनों से मुझे और आपको आजाद कर दिया। इसलिए जब वो खत शुरू करता है तो कहता है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उस शरीयत के नीचे नहीं आते, वो फजल के दौर में बसते हैं। They're living in a time of mercy, जिसको स्पेनिश में सर्वोत्रिया कहा जाता है। वो फजल के दौर में जी रहे हैं। फजल उनके साथ नहीं, फजल उन पर हो चुका है। क्योंकि अगर ये फजल ना होता, अगर यीशु की ग्रेस मेरी और आपकी जिंदगी पे ना आती, तो मैं और आप गुनाह की और मौत की शरीयत के अंदर रह रहे होते, गुनाह और मौत की शरीयत के वसीले जिए होते, और फिर मेरा और आपका हिसाब गुनाह और मौत की शरीयत के वसीले होना, जो कि मूसा की मार्फत लिखी गई थी। क्योंकि मूसा की शरीयत में कभी भी जिंदगी नहीं आई, उसके बाद जिंदगी नहीं थी, क्योंकि मूसा खुद यीशु का मुंतज़िर था। मूसा खुद यीशु के साथ चलना चाहता था। मूसा खुद यीशु के साथ बैठना चाहता था। मूसा खुद यीशु को देखना चाहता था। मगर मैं और आप किस दौर में रह रहे हैं? इसका क्या लिखा है? इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म में सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया जानी, उसने अपने बेटे को गुनाह और जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम पर पूरा हो
जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह की मुताबिक चलते हैं। शरीयत आपको रूह की कई तालीम नहीं देती। आप पहली 5 किताबें पढ़ लें, उसमें कहीं रूह का जिक्र नहीं होता, उन पे रूह आके ठहरता था। शरीयत क्या मलाकी तक रूह आके से ठहरता था, उनके अंदर नहीं बसता था। मगर ये क्या कहता है पौलुस यहाँ पे, जहाँ पे ये पौलुस गलत है, यहाँ बहुत से मसीह आज उसको गलत लेना चाह रहे हैं। वो कह रहा है ताकि शरीर का तकाजा हम पर पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। जिस्म के मुताबिक क्या है? जो जिस्मानी चीजों का ख्याल रखते हैं और रूहानी चीजों का नहीं रखते। अब जिस्मानी चीजें क्या है? बहुत से सवाल बहुत दफा होता है, जिसके नाम बहुत गलत सवाल, आज उसके ऊपर बात करेंगे, दुपट्टे के ऊपर। बाइबल के अंदर 3 दर्जे लिखे हैं। औरत का सर मर्द, मर्द का सर यीशु है। औरत का एक सर ढकता है, वो मर्द का उसका, मगर मर्द के एक और सर ढकता है, उसका नाम यीशु है। इसी तरह बिब्लिकल तौर पे आप सर ढकते हो या नहीं ढकते। जैसे अगर लोग से उसको बुरी तरह नहीं पढ़ते, अगर कोई और दुपट्टा नहीं देती, वाले तो बाल में वाले यहाँ पे कितनी बैठी उन्होंने आकर बाल नहीं देखा, मगर इससे इम्पोर्टेंट गुनाह है। आपके सर पे दुपट्टा लेने या लेने से किसी की जिंदगी में गुनाह नहीं। आप दुपट्टा लेते हो या नहीं लेते, उससे किसी की जिंदगी में गुनाह नहीं आता। आप इस तरह के कपड़े पहनते हो, इससे चर्च में गुनाह जरूर आता है। हम लोग सिर्फ जिस्म की शरीर में जीना चाहते हैं, जिस्मानी बात में जीना चाहते हैं। आप जब अफाशा कपड़े और गलत कपड़े पहन के चर्च में बैठते हो, चर्च में आते हो, तो आप गुनाह नहीं कर रहे होते। आपके उसके और लोग जहन्नम में जा सकते हैं और उसकी सजा आपको भी होते हैं। जब आप फर्शा कपड़े पहन के, गलत कपड़े पहन के, और जो कि चर्च में पहनने की लायक नहीं है, आप वो कपड़े पहन के चर्च में आते हैं, आप खुद भी गुनाह कर रहे होते, मगर आप दूसरों से गुनाह करवा रहे होते हो। आप गुनाह की बुनियाद रख रहे होते हो, आप गुनाह की तरफ लोगों को लेके जा रहे होते हो, आप गुनाह की तरफ लोगों को माइल करते हो। अब बोले ऐसा नहीं हो सकता, एलिया जैसा नबी नहीं है कोई, बहुत अच्छे नबियों ने एलिया का कोई नबी था, मगर वो भी जिस्म और खून में बसता था। जब उस पर मौत का हुक्म आया तो जगत से भाग के चला गया। क्यों? क्योंकि जिस्म और खून से था। मैं और आप उसी जिस्म और खून से बसते हैं। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी सर, ये चीज नहीं है। पौलुस क्या कहता है? ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। आप और मैं जिस्म के मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं या रूह के मुताबिक जीना चाहते हैं? रूह आपको थकता है, रूह आपके ऊपर है, रूह आपके अंदर है, मगर जब आप अपनी बॉडी को आप मैनिफेस्ट करते हैं अपनी के लिए, नोट इट डाउन, आप अपने जिस्म को अबलीस के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, आप जिस्म की जो कहलात में मौत में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। आपकी वेयरिंग, आपकी क्लोथिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके चर्च में आने के लिए। आपके सर को देख के कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि नहीं मैं सेक्सुअलिटी में जाने लगा हूं, बहुत दूर की बात है, मगर किसी के सर को देख के किसी ने बोला होगा वो कितनी कैसे लग रही है, हकीकत है। हमेशा आपके कपड़ों से लोग आपको पहचानते हैं और आप अपने कपड़ों के वसीले चर्च में गुनाह लेके आते हैं। आपके कपड़ों के वसीले लोग के दिल के अंदर, प्रीचर तक के दिमाग के अंदर गुनाह लग जाता है। जो प्रीचर प्रीच कर रहा था जिस्म और खून से है, उसमें जिस्म और खून बसता है।
सो मैं और आप क्यों आज तक उस दौर में रहना चाहते हैं जो कि जिंदगी का दौर नहीं है? हम मौत के दौर में रहना चाहते हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को चर्च में ला के मौत की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो खुद गुनाह कर रहे होते हैं, मगर वो खुद गुनाह नहीं कर रहे होते, वो लोगों को गुनाह की तरफ माइल कर रहे होते हैं और लोगों को जहन्नम के दरवाजों के लिए छोड़ रहे होते हैं। So please, we have to know one thing, कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपका सर किस टाइम पे है, क्योंकि एक दिन आपको सर मिलना है। हर औरत का एक सर है और हर मर्द का एक सर है, हर सर पे एक सर है, क्योंकि यीशु के ऊपर एक सर है, वो बाप का सर है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज कवर्ड, मगर जिस्म नहीं है कवर नहीं। जिस्म को कवर मैंने और आपने करना है, और नंगा जिस्म जब होता है जब आप गुनाह करते हैं, बिल्कुल तौर पे आदम और हवा नंगे होने के बावजूद भी जब गुनाह नहीं था, नंगे नहीं थे अपनी नजर में, मगर जब गुनाह आया तो पहली चीज जो आई वो नंगापन आया। सिखवा यहूदी के बच्चों ने जब गुनाह किया तो बदरूल उनको क्या किया? उनको नंगा किया, उनके कपड़े फाड़े। नंगापन आपके गुनाह को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। जब आप चर्च में नंगे हो के आओगे, नंगे बन के आओगे, आप गुनाह को रिप्रेजेंट करोगे, आप गुनाह को जो के साथ खड़े होगे, आप गुनाह में होगे, आप में गुनाह होगा और आप लोगों को गुनाह की तरफ लेके जाओगे। मगर पौलुस इस तरह नहीं चाहता, ना पौलुस की ऐसी ख्वाहिश है, ना पौलुस ऐसा सोचता है, ना पौलुस ऐसा कहता है, और ना ही पौलुस ने ऐसा कभी कहा है, ना ही ऐसी कोई शैली और है। ये लड़का मेरे घर में सारी बचपन से लेकर आज स्पेनिश में गया है, ये आपको बता सकता है। ऐसा तो नहीं होता कि मिनिस्टर को पहन के आता है चर्च में, साफ कपड़े पहन के आते हैं तो, और vienen los dudas, vienen preparados, ¿no? Estamos seguros, ¿no? Estamos de acuerdo con usted, ¿no? ¿Por qué no vienen así? कहते हैं ताकि शरीयत का तकाजा हमने पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। अगर मैं और आप शरीर को पूरा करना चाहते हैं तो फिर भी मैं और आप जिस्म में नहीं चल सकते। मुझे और आपको रूह में चलना है, रूह में जीना है और रूह की जिंदगी को बसर करना है। अगर मैं और आप जिस्म की जिंदगी में जीते रहेंगे तो मैं और आप रूह की जिंदगी से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आदम और हवा ने जब जिस्म में जिंदगी जीनी शुरू की तो उनसे खुदा का रूह वापस ले लिया था। आदम और हवा पे मौत नहीं आई थी, आदम और हवा से जिंदगी ले ली गई थी। मौत एग्जैक्टली उस टाइम भी मैनिफेस्ट करती थी, मगर जहां पे खुदा का रूह होता है वहां पे मौत नहीं आ सकती। जहां पे खुदा का रूह बसता है, जिसमें खुदा का रूह रहता है, उसके पास मौत नहीं आ सकती, उसमें मौत का कोई इख्तियार नहीं हो सकता। मगर जिस दिन आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उनसे कुछ नहीं किया, खुदा ने उनसे अपना रूह वापसी ले लिया। और जब रूह नहीं रहा तो वो जिस्म के हो गए, जब जिस्म के हो गए तो वो मौत के हो गए, जब मौत के हो गए तो जहन्नम के दरवाजे खोलने लगे। क्या मैं और आप उस जहन्नम के दरवाजों को खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों का ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी बातें क्या है? जिस्मानी बातें तो मैं आज तक में सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए, लगना चाहिए चर्च आज सारा खत्म हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज सिद्रा से सबसे खूबसूरत कपड़े पहने हैं, पिछला सुनैना ने सबसे खूबसूरत पहने थे, इधर ने सुनैना से खूबसूरत पहने हैं। लेकिन मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरी हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए है, और मेरा रूह खुदा से सामने इम्परफेक्ट है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं, मगर जो रूहानी है
वो रूहानी बातों का ख्याल रखते हैं। वो सोचते हैं कि रूह काम करती है नहीं करती, वो सोचते हैं रूह क्या करेगी, वो सोचते हैं रूह आज हमसे क्या करना चाहता है। वो कहते हैं खुदा आज अपने रूह को हम पे नाज़िल कर, वो कहते हैं खुदा अपने रूह के वसीले हमसे बात कर, वो कहते हैं खुदा आज हम तेरे रूह से सुनना चाहते हैं, हम तेरे रूह के साथ बात करना चाहते हैं। आज तू अपना रूह हम पे नाज़िल कर, आज तो अपने रूह को नई तौर पे हमारे चर्च में, हमारी जिंदगी में, हमारे बीच में, हमारे लोगों में मैनिफेस्ट कर, ताकि हम रूह के वसीले नए फल पा सकें, ताकि हम रूह के वसीले नई बरकतें पा सके, ताकि हम रूह के वसीले नई जिंदगी पा सके, ताकि हम रूह के वसीले मुर्दों तक जिंदगी पहुंचा सके, ताकि हम रूह के वसीले जो कि दुनिया में पड़ते हैं उनको जिंदगी दे सकें। क्योंकि अगर तेरा रूह हमें नहीं तो हम किसी लायक नहीं, क्योंकि हम खुद मुर्दा है, मगर जब तेरा रूह हमें है तो हम अपनी इसकी हर ताकत पे पाते हैं, हम अपनी इसकी हर ताकत पे पाते हैं, हम अपनी इसके हर अटैक पे पाते हैं। मगर जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं, मगर जो रूहानी है वो रूहानी बातों का ख्याल रखते हैं। आप क्या ख्याल रखते हैं कि आप कितने अच्छे लगे, या ये कि आपको खुदा किस तरह देखता है? क्या आप ये देखते हैं कि आपको पास्टर दाऊद किस निगाह से देखता है? क्या आप ये देखते हैं जो दाऊद के ऊपर सर है, जिसने दाऊद को बुलाया, वो आपको किस तरह देखता है जो दाऊद को भी देख रहा है? वो जो कि दाऊद को खड़ा करता और दाऊद से बात करता, दाऊद तक बात पहुंचाता, या वो जो दाऊद बोलता वो ठीक है? जो मेरे ऊपर है वो सबसे ऊपर है, उसका नाम मेरे और आपका यीशु का नाम है। वो यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। और यीशु कभी भी जिस्मानी नहीं था, वो रूहानी था। अगर यीशु जिस्मानी की बात करते हैं तो यीशु आज का हिप्पी है। हिप्पी क्या करते, पहाड़ों में जाके बसते हैं। यीशु पे सुबह तो कहाँ पे लेके जाता था? पहाड़ों में चला जाता था। आज के दौर का हिप्पी है वो, गंदे हाथों से रोटी खाता। क्यों? क्यों? जिस्मानी खाई नहीं, उसको जिस्मानी बातों की फिक्र ही नहीं थी। मुझे और आपको फिक्र है जिस्मानी चीजों की, आए आज हो गया, हाय ऐसा हो गया। जो रूहानी है वो रूहानी बातों का फिक्र करता है। क्या खुदा करूं? मेरे चर्च सुनाने से पहले को आपको चला तो नहीं किया? ये खुदा के चलाने तो आपका चर्च सुनाने का बाद में क्या फायदा है? आप मुझे स्कूल को मिलने आना है, उनको आके चला गया है। मगर जो रूहानी है वो रूहानी बातों का ख्याल रखते हैं। आगे का लिखता है, और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी, इत्मीनान है। जिस्मानी नीयत मौत है। क्यों लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्योंकि अपने आप को दूसरों से अपने आप को ज्यादा सेक्सी शो करते हैं। अगर साफ तौर पर सुना जाए, जिस्मानी नीयत मौत है, और वो सिर्फ खुद ही मौत देते हैं, वो औरों को मौत की तरफ माइल कर रहे होते हैं। सेक्सुअलिटी मौत का शुरू है। सेक्सुअलिटी बहुत से मौत के दरवाजों को खोलती है। सेक्सुअलिटी की वजह से दाऊद ने एक शख्स को मारवाया। दाऊद ने खुदा के 3 जो 10 हुक्म हैं उनमें से 3 को तोड़ा सेक्सुअलिटी की वजह से, क्योंकि उसकी आंखों ने वो देखा, उसके जिस्म को परेशान किया और वो जिस्मानी गुनाह में गिरा। जिस्मानी ख्वाहिश मौत पैदा करती है, और उसने मौत पैदा की, उसका बेटा मुर्दा हुआ। जिस्मानी ख्वाहिश मौत पैदा करती है। दाऊद के बेटे ने जिस्मानी ख्वाहिश की, दाऊद के बेटी के साथ गुनाह किया, मौत पैदा की, उसको उस लड़की के भाई ने मार दिया। जिस्मानी ख्वाहिश हमेशा मौत पैदा करती है, मगर रूहानी ख्वाहिश जिंदगी और इत्मीनान है। आप जब कुछ भी ना हो, आपको कोई भी पसंद करे ना करे चर्च में, आपको कोई खूबसूरत कहे ना कि चर्च के अंदर, मगर एक ज़्यादा आपसे खुश होती है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है।
آپ کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، مگر آپ میں باپ کی آنکھ میں کیا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایسے بھی کپڑے پہنتے ہیں، میرے خیال مائکے کو کون کو جاتا ہے جو ریزریکشن ڈے کی عبادت پہ آیا تھا یہاں پہ کچھ کرنے، ان کی حالت دیکھ کے لگتا تھا جہاں نے کچھ ٹائٹ پہنی تھی تو اس کی سفائی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ روحانی زندگی جیتا ہے، جو روحانی زندگی جیتے ہیں وہ روح کی باتیں کرتے ہیں، مگر جو موت کی طرف جاتے ہیں وہ جسمانی ہیں۔ اس لیے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ خدا کی شریعت کی کتابیں ہیں نہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سسٹم کی شریعت میں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ موسیٰ کی شریعت میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی خدا کے سامنے نہ راست بازتے نہ ہے نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کے مطابق کوئی بھی آج تک راست باز نہیں ہوا، مگر جب یسوع کا روح مجھ میں اور آپ میں آتا ہے تو مجھ اور آپ کو وہ راست باز کی طرف لے کے جاتے ہوئے ایک دن اس طرح لے جاتا ہے جس دن میں اور آپ خدا کو اپنی آنکھوں سے اپنی شکل سے شکل دیکھیں گے۔ یہ خدا کا کلام مجھ اور آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ راست باز اس کو دیکھیں گے، راست باز خدا کو دیکھے گا۔ راست باز کب ہوتے ہو؟ جب مجھ میں اور آپ میں روح بستا ہے، جب میرے اور آپ کے اندر روح رہتا ہے، جب میرے اور آپ کے اندر روح مینیفیسٹ کرتا ہے۔ مگر اگر میرے اور آپ کے اندر روح نہیں ہے، اگر میرے اور آپ کے اندر روح نہیں مینیفیسٹ کرتا تو میں اور آپ روح کے مخالف ہیں، میں اور آپ موت کے مخالف نہیں بلکہ روح کے مخالف ہیں۔ مگر یسوع چاہتا ہے کہ ہم موت کے مخالف ہوں، یسوع چاہتا ہے ہم موت کا مقابلہ کریں، یسوع چاہتا ہے ہم موت کے سامنے کھڑے ہوں، یسوع چاہتا ہے ہم زندگی کو مینیفیسٹ کریں۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط ہے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مگر تم جسمانی نہیں ہو، تم روحانی ہو، اور اگر تم میں مسیح کا روح نہیں بستا تو تم خدا کے نہیں ہو۔ اس لیے اس نے اس بات کو لکھتے ہوئے اسٹارٹ میں کیا ہوگا؟ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے، کیوں وہ مسیح یسوع میں ہے؟ وہ نومینہ ملائکہ کا بیان کرتا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، لیکن روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ بائبل کہتی ہے ایک بھی راست بازی کوئی بھی نہیں، مگر وہ پھر بھی کہتا ہے روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ جسم کبھی بھی راست باز نہیں ہو سکتا، نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا بدن ہمیشہ سے گناہ کو پسند کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، مگر مجھے اور آپ کو اپنے اس بدن کو گناہ سے دور کرنا، گناہ سے نکالنا اور اس روح کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ روح راست باز ہے اور روح ہی صرف خدا کو دیکھے گی۔ اس لیے آج تک کسی نے جسم کی حالت میں خدا کو نہیں دیکھا، کیونکہ جسم کے اندر وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، مگر جب میرے اور آپ کی روح راست باز طریقے سے راست باز ہو جائے گی، وہ ایک دن اپنے باپ کو آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھیں گے۔ مقاشر کی کتاب میں لکھا ہے، زبور کی کتاب میں لکھا ہے، اور راست باز اسے دیکھیں گے، اور راست باز خدا کو دیکھے گا۔ کب دیکھے گا؟ جب وہ روح کی زندگی نہیں جیے گا۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اس کا روح تم میں بسا ہوا ہے، جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا ہے، تو جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا
हुआ है। इट मीन कि पौलुस जब रोमियो की किताब लिख रहा था तो जहां से शुरू करता है वहां जाके कंफर्मेशन भी देता है। याद किया कि मैंने बड़ी दोबारा पढ़ना था प्लीज, इसको सारे तरह गौर से सुनिएगा प्लीज, सारे इसको गौर से सुनिएगा। लिसनिंग प्लीज। और अगर उसी का रूप में बसा हुआ है, और अगर उसी का रूप में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। अब ऐसा रूह है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, क्या वो रूह नॉर्मल रूह है? प्लीज। तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे खाली बंदों को भी, वाह, वो तुम्हारे, क्या यहाँ पे लिखा है पौलुस ने 1000 के, या पौलुस ने लिखा है 1 लाख के, या पौलुस ने लिखा है अमेरिका के, या पौलुस ने लिखा है इस्राइल के, या पौलुस ने लिखा है इंडिया के, या पौलुस ने लिखा है यूरोप के। बाइबल लिखा है वो तुम्हारे खाली बंदों को भी अपने उस रूह के वसीला अपने उसी रूह के वसीला, प्लीज नोट इट डाउन। आप कभी भी खुदा के रूह के बगैर खुदा की बादशाह में नहीं जा सकते हैं। फानी बदन जितनी भी परफेक्शन कर लेना जिस्म की, ये जिस्म फानी रहना चाहिए। ये फानी था, फानी है और ये फानी ही रहेगा। ये जिस्म मट्टी से लिया गया है, मट्टी में डाला जाएगा और मट्टी में ही रहेगा, क्योंकि जिस्म फानी है। क्यों? इस जिस्म की वजह से हम खुदा के सामने गुनाह करते हैं। क्यों? इस जिस्म की भी हिफाजत करते हैं कि हम खुदा के रूप को कुछ समझते नहीं हैं। क्यों? हम जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए अपने खुदा के घर में ले जाते हैं। क्यों? हम इस जिस्म को संवारने के लिए, जो कि दुनियावी सवार है, जो दुनियावी खूबसूरती है, अपने रूप को बदसूरत कर रहे हैं। ये दोहराव बात है। अपने इस फानी बदन को बेहतर करने के लिए अपनी रूहानी जिंदगी को, अपनी अपनी जिंदगी को लानत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि आप हमें लानत की नहीं, ये सोचते हैं कि आप हमें लानत पाएं। ये सोचते आया कि मुझ पर आप में लानत बसे, ये सोचते आया कि आप और मैं जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की पाएं। आगे क्या लिखता है? उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा तुम्हें बचा है। जब आप में खुदा का रूह नहीं बसता तो आपको जिंदा कैसे करना है? जहन्नम आपको इंतजार कर रहे हैं। जिंदा करने वाला रूह ही नहीं आपने, आपके काम ही क्यों नहीं है, तो आपको जिंदा किससे करना है? जब आप में रूह ही अपने आप को ठीक करने के लिए है, अपने जिस्मानी बदन को खूबसूरत करने के लिए और खुदा के लिए दूर करने के लिए है, तो आपको फिर जिंदा कौन करेगा? ये मेकअप आपको जिंदा नहीं करेगा, ये नंगे कपड़े आपको जिंदा नहीं कर सकते, आप नंगी सोच आपको जिंदा नहीं कर सकते, आपकी जना का सोच आपको जिंदा नहीं कर सकते, आपकी जिस्मानी ख्वाहिशों की सोचें आपको जिंदा नहीं कर सकती। आपको जिंदा से तय कर सकता है और वो यीशु का रूह है, वो खुदा का रूह है, वो रूह है जो पैदाइश में लिखा हुआ है। पैदाइश में क्या लिखा है? बुक ऑफ जेनेसिस और खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन पर आराम सुनसान को गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूहानी की सतह पर जुम्बश करती। ये वो रूह है जब ज़मीन सुनसान और वीरान, क्या लिखा हुआ है? Era vacía y disorder. 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 जो तरतीब में ना हो, क्या कुर्सियां इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर करना? क्या आप अपने बाप से पहले पैदा हो जाएंगे और आपका बाप आपकी बात पैदा ऐसा हो सकता है?
मगर जमीन इसी तरह डिसऑर्डर, वीरान, वीराना यहाँ पे रहता था। और खुदा की कभी भी बीच, वाह, और खुदा की नीचे नहीं आएगा। खुदा की रूह, कैसी बात है, बाइबल लिखा है, और खुदा की रूह उसके ऊपर जुम्बश करती है, ऊपर अंदर नहीं। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर वीरानापन और बेकदरी है, खुदा का रूह आपके ऊपर जुम्बश करता रहेगा, आपके अंदर कभी नहीं बसेगा। जमीन के अंदर उसको वीराने को खत्म कर, वाह, और खुदा ने वीरान जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन मैदान और सुनसान को घुराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पे जुम्बश करती थी, और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। उस वीराने को और इस तरीके को खुदा को खत्म करना पड़ा, उसको यीशु को उसके अंदर भेजना पड़ा। यीशु पहली दफा जमीन पे नहीं आया, वो पहली दफा दुनिया पर तकलीफ होने से पहले आदम और हवा की आने से पेश कर वो यीशु इस जमीन के अंदर आया। खुदा जब किसी चीज को ठीक करता है, खुदा यीशु को पहले भेजता है। अगर आप अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं तो यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर आने दें, ताकि खुदा का रूह आपके अंदर आके बस लगे। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं आएगा तो आपकी जिंदगी में बनाना देगा, सुनसानी रहेगी, बेकदरी रहेगी, और आप मौत की तरफ रहेंगे। मगर जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो सब सुनसान पर वीरानापन, बेकदरी, सब गुनाह, सब लांछन आपकी जिंदगी से चली जाएंगी, और खुदा का रूह आपके अंदर आने लगेगा। खुदा का रूह कभी भी किसी के अंदर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सुनसान और वीरान थे। फिर यीशु आया, और जब यीशु आपकी दुनिया से गया तो ईदे पेंटिकोस्टल के दिन खुदा का रूह 120 की जमात के अंदर आके बसने लग गया। जब भी खुदा का रूह आपके अंदर आता है, उससे पहले यीशु आपकी जिंदगी में आना जरूरी है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं आता तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में नहीं है, न था, न है, न होगा, क्योंकि जमीन सुनसान और वीरान थी, और खुदा की पानी के ऊपर जुम्बश करती थी। क्यों उसके अंदर नहीं था? क्योंकि खुदा डिसऑर्डर जगह में, बेतरतीब जगह में कभी भी नहीं सुकून रखता। हम जो छोटे इंसान हैं, ये पूरी जमीन की बात हो रही है, और खुदा की वो जमीन पे नहीं आती थी। इस जमीन को उसको यीशु को भेजना था, इसे बेशक यीशु जिस्म के तौर पे आया, वो नूर के तौर पे आया, और उसने इस सुनसान, इस वीरान, इस तारीख दुनिया को नूर बख्श दिया। उसने इसको ऑर्डर कर दिया, उसको तकदीर पे कर दिया, और खुदा की रूह फिर जमीन पे आने लग गई। अगर तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, अय्यूब के खत के अंदर, अय्यूब की किताब के अंदर, अय्यूब की किताब के अंदर बाइबल लिखा है, जब शैतान जमीन पर सैर करके गया तो खुदा ने उससे पूछा, खुदा का कभी भी जमीन पर नहीं आ सकता, और मैं और एक जमीन में हम खुदा का मकदस है, और मकदस जमीन है, हम खुदा का ट्रैक्टर हैं, और हम एक जमीन है। एक जमीन में एक पौधा लगा हुआ है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर डिसऑर्डर, वीरानापन और तारीकी रहेगी, कभी भी मैं और आप खुदा के रूप अपने अंदर नहीं आएंगे। जब तक खुदा का रूह नहीं आएगा, जब तक मैनिफेस्टेशन और गॉड मेजर आपकी जिंदगी नहीं हो, यीशु को पूरे तौर पर नहीं आने लगा। अगर यीशु आपकी जिंदगी पूरे तौर पे आ जाएगा तो खुदा आपके साथ बसने लगेगा। जब यीशु पूरे तौर पर अपना काम इस दुनिया से कर गया, खुदा पूरे तौर पर उसके बाद से लेकर आगे की दुनिया में बसता है। वरना वो पाप प्रिय काम के अंदर बसता था, क्योंकि उसने अपनी हदूद बनाई थी, यहाँ पे पाप था, उनके नाम पर इंसान बना था, वीराना था। वो पाप नहीं बल्कि पाप करीम मुकाम, el lugar más santificado, el lugar más santificado, एक जगह जो पाक है, ठीक है,
मगर एक जगह और थी जो पाक तरीन थी। अब आप इंसान के दादा मम्मी था, सरदार का ही सिर्फ और सिर्फ साल के चंद रसूल जुमा। क्यों? क्योंकि आप था। मगर जब यीशु आया जो पाक तरीन मुकाम का हाल हुआ और उसका पर्दा ऊपर से नीचे तक लोग गुस्से हो गया। What has happened? खुदा को पता चल गया अब मेरे लोग ना सुनसान रह गए हैं, ना वेलान हैं, ना अकेले हैं, ना करीबी में हैं, क्योंकि अब यीशु जब उसने शुरू में इस जमीन पे रोशनी दी थी, अब वो नूर इस दुनिया में चमक गया है, अब वो नूर इस दुनिया में आ गया है। इससे बेशतर कि यीशु सलीब पे मरता पूरे इस्राएल पे अंधेरा छा गया था, करीबी आ गई, मगर जैसे उसने जान दी और नूर को बाहर आना पड़ा और नूर जब बाहर आया तो जिंदगी मैनिफेस्ट होने लगी। यहाँ तक कि मुर्दे कब्रों में से जी उठे थे उस दिन और मुर्दे उस दिन उनको नजर आए। क्यों? क्योंकि जिंदगी उनके अंदर बसने लगी थी। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाह में जाएं और हम खुदा को अपनी आंखों से आंखों होकर देखें, तो मुझे और आपको अपने जिस्म की फिक्र नहीं करनी, बल्कि अपने रूह की हिफाजत करनी है, रूह की ताबेदारी में जीना है और रूह को संभालना है। क्योंकि जिस्मानी ख्वाहिशात कल भी मौत पैदा करती थी, आज भी मौत पैदा कर रही है, हमारे यहाँ 10 में मौत पैदा करेगी, मगर रूहानी ख्वाहिशात कल भी जिंदगी देती थी, आज भी देती हैं और अब तक जिंदगी देती रहेगी। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके साथ रहना चाहता है और यीशु आप में होकर काम करना चाहता है। मगर यीशु कभी भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बाप चाहता है कि मेरे और आपकी जिंदगी में से जगाना का और सुनसान का चला जाए। जिस्मानी ख्वाहिशात खत्म हो गई, जिस्मानी चाहत रद्द हो गए। भूल जाए हम कि हमने चर्च में सबसे खूबसूरत लगना है, भूल जाए हम कि हम चर्च में सबसे लेट रहेंगे तो सारा चर्च भूल जाए हम कि मैं सबसे सेक्सी नजर आना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। भूल जाए आप कि मेरे जूते सबसे खूबसूरत होने चाहिए। भूल जाए आप कि दूसरा क्या पहनता है या आपने क्या पहना है। आप ये सोचें कि जो दूसरे के अंदर यीशु बसता है या आप में यीशु बसता है नहीं बसता, या दूसरे के अंदर 20 बस रहा है कि आपको 20 नहीं बसता। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जिस्म की इबादत करेंगे तो मौत के खतरान को चले जाएंगे। कितने लोग जिस्म की जिंदगी जीना चाहते हैं? कितने लोग रूह की जिंदगी बसना करना चाहते हो? मैं हाथ उठाऊं, क्योंकि रूह की सिर्फ जिंदगी है। हमने का खड़े होते हैं। शाम से सोचा था क्या कलाम सुना होगा, क्या कलाम सुना होगा, अंदर आया तो खुदा ने बात की। खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर क्या हम बाकी जिस्मानी जिंदगी को छोड़ना चाहते हैं अगर हम बाकी जिंदगी को बनाना चाहते हैं तो कैसे बोले? खुदा हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं, हम अपने आप को तेरे सामने रखते हैं और बाप डिक्लेयर करते हैं, और बाप डिक्लेयर करते हैं, हम अपनी जिंदगी पे नबूवत करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी पे नबूवत करते हैं कि इब्लीस हमारे जिस्मों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि इब्लीस हमारे जिस्मों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि बाप हम जिस्मानी जिंदगी नहीं जीना चाहते आप, क्योंकि बाप हम जिस्मानी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते आप। हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को रद्द करते हैं, हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को रद्द करते हैं, हम अपनी रूहानी बरकतों को मांगते हैं, हम अपनी रूहानी बरकतों को मांगते हैं, क्योंकि जिस्म को मिट्टी से लिया गया है, क्योंकि जिस्म को मिट्टी से लिया गया है वो मिट्टी में रह जाएगा और वो मिट्टी में रह जाएगा, मगर रूह तेरी अमानत है, तेरी अमानत है, तेरी दी हुई एक नेमत है, तेरी दी हुई एक नेमत है, तेरी एक बख्शिश है, तेरी एक बख्शिश है। वो रूह मेरे पास जाए, वो रूह तेरे पास जाए और एक दिन वो रूह और एक दिन वो रूह तुझे सामने देख सके, सामने देख सके। बाप हमें इस्तेमाल कर, बाप हमें इस्तेमाल कर, जोर दे, कुव्वत दे और अपने जलाल के लिए खड़ा रख। और अपने जलाल के लिए खड़ा रख। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। वाह, God is powerful.
और यीशु ने कभी भी जिस्म की ख्वाहिश नहीं सोची। यीशु ने जब अपने शिष्यों को क्या सिखाया, किधर थैली लेके जा रहे हो, कल की फिक्र कल क्यों करते हैं। What are they trying to teach him? कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें यहाँ भी छोड़ दो। अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपनी जिस्मानी सोच आज से खत्म कर दो। पतरस को उसने क्या सिखाया? पतरस एक बछेरा था, प्रोफेशनल माहिती मछलियां पकड़ता था, उसकी ख्वाहिश पकड़ी नहीं पकड़ सका। यीशु ने उसको सिखाया कि कर्मबदारी करना किस तरह इम्पोर्टेंट है। थका हुआ आया, यीशु को फिर मछली के वहां अंदर ले गया, समुद्र के अंदर अब क्या हुआ? जब उसने जाल फेंका, जाल इतना भर गया और किसी डूबने लगी, जो मछली भी ज्यादा हो गई। तो उसकी जिस्मानी सोच की सोची, वो जरूर के मुताबिक रूह के पीछे चला। ये यीशु का अगर आप यीशु में से चलेंगे तो आप खाली हाथ भी होंगे, वो आपके खाली हाथों को